Hello, friends. A very warm welcome. And in this brief and a quick session, we are going to pick up what are the demands with respect to science and technology syllabus of General Studies Paper 3. We are doing this exercise at a kind of an evaluation exercise because this can be done obviously at the beginning of preparation and also at the very fag end of the preparation, because if you are knowing very well throughout your preparation that how to keep it dynamic and how to keep it going, and then later on it can be used as a tool to analyze your level of preparation. So we have both the ways, and from that perspective, it is an open-ended and a kind of a challenging exercise. This becomes challenging because we need to see what more need to be done in a very limited span of time and abilities. Now, syllabus says the developments and their applications and effects in everyday life. सब कुछ आ जाता है इसमें तो डेवलपमेंट्स, लेकिन कहाँ से हम जज करेंगे? So developments we're gonna judge from what is there in general studies paper 2 and 3. For example, health, for example, space technology, for example, agriculture, certain kind of technology which is having applications in agriculture. For example, Nisar, if I take quick example, why we need to have a space mission, why we need to go to moon, why south pole of the moon is important, why we want a you know Gaganyaan and so forth. Why, what is the role of human genome project, why Indian genome project is so important, and how many prototypes we had used, what is the population type we use, why we use different kind of populations in our human genome project, what actually human genome project is going to help us. So these are kind of applications which are going to be asked, but the question paper can become more tricky if it can ask you small terms, because everybody will be ready with the applications, but then small term may come up. Small terms, for example, we say for example, when we say small term, that means Casper C9, or for that matter ड्रोन टेक्नोलॉजी के पीछे क्या वेवलेंथ है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, and limitations of the GPS, and autonomous development that we are seeing in AI, for example, and like quantum mission, for example. People say that अगर quantum mechanics और quantum mission बहुत बड़ा हो जाता है, then it can also encrypt cryptocurrency, और सब कुछ encrypt जो है, जो भी encrypted है उसको आप पकड़ के खोल दोगे. बट देन द क्वेश्चन अराइजेस कि अगर वो खोल पाओगे तो उसके साथ साथ फिर कुछ और टेक्नोलॉजी भी आ जाएगी, एंड देन इट विल बी गोइंग फर्दर. सो इट्स एन साइकिल. तो यही हम कहेंगे अचीवमेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट अचीवमेंट्स ऑफ इंडियंस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी. अचीवमेंट्स ऑफ इंडियंस. सो डू चेक आउट नोबेल प्राइज विनर्स. शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड जो होता था और अभी भी उसका नाम बदल दिया गया है, वो भी है. CSIR, इसरो, आरडीओ, HAL, मिश्रा धातु निगम लिमिटेड, न्यूक्लियर एंड न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, NCIL हो गया. सो देर आर PSUs हैं, महान महान PSU, चाहे वो ONGC विदेश लिमिटेड हो और यंग. तो आप अब डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वेबसाइट पे जाके 1 घंटे का सर्च होगा, उसमें सारा काम हो सकता है. इंडिजिनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो इस पे हमने थीम लगातार, हमने पूरे प्रोग्राम, पूरे प्रिपरेशन में हमने चर्चा की है कि कैसे वी हैव टू लेसन द डिपेंडेंस ऑन नॉट ओनली चाइना बट एनी ऑफ द कंट्रीज फॉर दैट मैटर. अवेयरनेस इन द फील्ड ऑफ IT. अवेयरनेस अब शब्द बहुत ब्रॉड है, IT की फील्ड में अवेयरनेस, लेकिन आएगा फिर भी उसका एप्लीकेशन. स्पेस आएगा, एप्लीकेशन ही जो मैंने ऊपर बात की. कंप्यूटर्स, वही बात है. रोबोटिक्स एप्लीकेशन आएंगे. नैनो टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन आएगा. क्या नैनो टेक्नोलॉजी होती है, बायोटेक्नोलॉजी में भी यही होगा. एंड देन इश्यूज रिलेटिंग टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स. तो उसमें IPR, ट्रिप्स और फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं. नाउ लेट्स सी डेवलपमेंट्स एंड देयर एप्लीकेशन में हमारे पास 2022 में देखिए क्या आया. व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल बिहाइंड वैक्सीन डेवलपमेंट. क्वाइट पर्टिनेंट, क्योंकि कोरोना आ चुका था. हाउ डू वैक्सीन वर्क, बिल्कुल इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. What approach were adopted by the Indian vaccine manufacturer to produce COVID-19 vaccine? I think fair question, reasonable question, और ये आना ही चाहिए कि वैक्सीन वर्क कैसे करती, क्योंकि ये कोई अजूबा नहीं है. अब दूसरा क्वेश्चन अगर हम देखें
Elucidate the relationship between globalization and new technology in a world of scarce resources with special reference to India. Again, a very applied, very applied, very open-ended question है, कैसे ही कर लो इसको. ग्लोबलाइजेशन एंड न्यू टेक्नोलॉजी, चाहे फिर आप इसमें सेमीकंडक्टर लेके आइए, चिप मेकिंग लेके आइए, इसमें आप ग्रीन एनर्जी लेके आइए, इसमें आप सोलर पैनल, सोलर सेल लेके आइए, कुछ भी आप लेके आइए, इसके अंदर आप जो है मैक मशीन्स, द इंडस्ट्रियलाइजेशन वी हैव इन इंडिया, उसकी बात आप कर सकते हैं, जो हमने यूरोप, साउथ कोरिया, सिंगापुर, जापान एंड यूएस, बाकी कंट्री सब ने लिया. तो बहुत ओपन एंडेड है, रिलेशनशिप आप समझा पाओगे. लेकिन स्कैर्स रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं तो यू कैन नॉट टेक ऑल द एग्जांपल्स. सो यू हैव टू सी व्हाट वी आर इंपोर्टेड, व्हाट वी आर इंपोर्टिंग, चाहे वो पोटाश ही क्यों ना हो. तो वही बात है, आपके पास मौका है ऐसे क्वेश्चंस में, इस बार भी आएगा. देन यू हैड द क्वेश्चन व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी, हाउ डज इट अफेक्ट ग्लोबल सोसाइटी, हैज इट बीन अफेक्टिंग इंडियन सोसाइटी ऑल्सो. तो ये साइंस एंड टेक का क्वेश्चन है, बिकॉज यू आर आस्किंग व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी. Now, how science is interwoven deeply in our lives? What are the striking changes in agriculture triggered off by the science-based technologies? आ गया वही क्वेश्चन. चाहे इसमें एग्रीस्टैक की बात करो, चाहे इसमें नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट की बात करो, चाहे इसमें आप सोलर सेल्स की बात करो, चाहे इसमें आप सेंसर्स की बात करो, चाहे इसमें आप आपके जो व्हाट्सएप से लेकर बाकी आप कर रहे हो, चाहे फिर आप इसके अंदर हाइब्रिड वेराइटीज की बात करो, डिजीज रेजिस्टेंट क्रॉप्स की बात करो, इसमें आप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज कोयम्बटूर है, लुधियाना है, दिल्ली है, जोधपुर है, आप कुछ भी लिख सकते हैं, आपका भविष्य उससे डिसाइड होगा. COVID-19 pandemic has caused unprecedented devastation worldwide. However, technological advancements are being availed readily to win over the crisis. Give an account of how technology was sought to aid management and how technology, यानी ये बात कर रहा है जैसे हम बात कर रहे हैं, ये बात कर रहा है कैसे बिना मिले भी कैसे टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ने एडवांसमेंट किया. वरना कोरोना से पहले आप जो है वीडियो कॉन्फ्रेंस और टेली कॉन्फ्रेंसिंग वॉज नॉट द वे ऑफ द वर्ल्ड. उसमें अभी 10 साल लगते. कोरोना ने डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ की तरह पूरे विश्व को आगे बढ़ने पर मजबूर कर दिया. डिस्क्राइब द बेनिफिट्स ऑफ डिराइविंग इलेक्ट्रिक एनर्जी फ्रॉम सनलाइट इन कॉन्ट्रास्ट टू द कन्वेंशनल एनर्जी. वही पूछना ही पड़ेगा, क्या करोगे, वही जो पीटी के लिए पढ़ा था, सोलर पैनल, लिथियम सेल्स, रिचार्जेबल सेल, मॉड्यूल्स. इनिशिएटिव भी बताइए सरकार ने जो हमारे दे दिए, आप बताइए. क्वेश्चन यानी और टफ आएगा, यानी कि हर घर सूर्य योजना पूछ लेगा, आपका इंद्रधनुष मिशन है वैक्सीनेशन में, टीबी कंट्रोल की बात है, आप लिप्रेसी को तो खैर कर ही चुके हैं, और उसके बाद जो है आप प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव की बात कर रहे हो, आप तमिलनाडु हब है मैन्युफैक्चरिंग का. तो हमारे यहाँ जो भी हिडन बेसिक प्रिंसिपल से एडवांसमेंट हो रहे हैं वो आपको लिखने पड़ेंगे. स्टैंडर्ड पोजिशनिंग सिस्टम एंड प्रोटेक्शन पोजिशनिंग सिस्टम इन जीपीएस ईरा, अब ये आ गया. एडवांटेजेस बताइए IRNSS के साथ. 7 सैटेलाइट्स हैं, अभी उसका एटॉमिक क्लॉक कुछ सैटेलाइट्स का तो एटॉमिक क्लॉक भी सही नहीं चल रहा. लेकिन मेरा ये मानना है इस बार डिफेंस पे जरूर चांसेस हो सकते हैं. डिफेंस इंडिजिनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और उस पर पक्का 200% ड्रोन और ये सारी चीजों की बारी आ सकती है. अब आप देखिए, व्हाट आर द एरियाज प्रोहिबिटिव लेबर वेयर लॉ प्रोहिबिटेड एक्स मैनुअल स्कैवेंजिंग दैट कैन बी सस्टेनली मैनेज बाय रोबोट्स. अब प्रोहिबिटेड लेबर में तो फिर आपका वही है, जैसे सीवेज मैनेजमेंट है, उसके बाद माइनिंग है, उसके बाद केव हो गया, उसके बाद जो है हजार्डस जो एक्सपेरिमेंट्स है, सब जगह रोबोट्स चाहिए. कैन द ओवर यूज एंड अवेलेबिलिटी ऑफ एंटीबायोटिक्स विदाउट डॉक्टर prescription contributes to the emergence of drug resistant diseases in India? What are the available mechanisms of monitoring and control? और उसमें इशू क्या है, इशू फिर भी आप नॉन साइंटिफिक लिख सकते हो, लेकिन मॉनिटरिंग कंट्रोल में आपको साइंस लेके आनी पड़ेगी. FDC जो पूछा गया है 13 में, और उसके मेरिट और डिमेरिट उससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन है ये. और तो और देखी जाए, क्रिकेट पे भी क्वेश्चन आ चुका है, अंपायर डिसीजन कैसे लिया जाता है क्रिकेट में, उसके कंपोनेंट बताइए. और एक सिलिकॉन टेप जो है वो अगर
बैठ के कोने पे लगा दी जाए तो क्या ये फूल कर सकती है? कैसे फूल करेगी सिस्टम को? तो इसके पीछे साइंस है वही। तो ये क्योंकि न्यूज में रहा था इसीलिए क्वेश्चन उस समय आया। बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स, क्योंकि हमारा क्वेश्चन है जिसमें हम बात करते हैं इंडियन साइंटिस्ट की, तो मैंने जैसे बोला आपको सत्येंद्रनाथ बोस, उनके बारे में पढ़ेंगे तो बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स अपने आप हो जाएगा। 10 इंडियन साइंटिस्ट हैं मुश्किल से, और कुछ नहीं तो इंडिया अचीवमेंट इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी सीधा ही पूछ डाला, लिख ले बेटा तेरे को जो लिखना है, रो मत कि तेरे को नहीं आता। हाउ द एप्लीकेशन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैज हेल्प्ड इंडिया इन, इससे जनरल क्वेश्चन नहीं हो सकता, और आम लिखोगे तो एवरेज नंबर ही आएंगे। दीज क्वेश्चंस आर वेरी वेरी डल, दे आर वेरी वेरी ट्रिकी एक तरीके से, क्योंकि आप सब कुछ लिखोगे कुछ नहीं नंबर आएंगे, फिर कहोगे मैंने तो सारा पेपर किया है, अब तो मैं जो हूं मैं मेरे को पता है क्या करना है, कुछ ना पता। इंडियनाइजेशन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ड्राइविंग न्यू टेक्नोलॉजी, S-400 देखिए 21 में आ चुका है। S-400 जिसकी चर्चा ड्रोन सिस्टम ने, इतनी ज्यादा मिसाइल सिस्टम की बात हुई तो उसके क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस है। व्हाट इज इंडिया प्लान्स टू हैव इट्स ओन स्पेस स्टेशन, हाउ इट विल बेनिफिट, रिपीट होगा ये क्वेश्चन किसी न किसी तरीके से। हाउ ग्रोइंग एनर्जी नीड्स टू टेक इंडिया कीप अप इन एक्सपेंडिंग न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम, इस पे हमने अपने न्यूज़पेपर सीरीज में डिटेल में चर्चा की है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। How has India achieved remarkable successes in unmanned space missions, including Chandrayaan and Mars orbiter mission, but have not ventured into manned space mission, both in terms of technology and logistics? Critically explain कीजिए। तो ये क्वेश्चन अभी भी रेलेवेंट है, क्योंकि 7 सालों में हमने बहुत कुछ अचीव कर लिया है। री एंट्री इनटू स्पेस हमने देख लिया, शुभांशु जी जाके आ गए, उसके बाद ग्रेविटी एंटी ग्रेविटी के हमने जो है वो एक्सपेरिमेंट, माइक्रो ग्रेविटी के एक्सपेरिमेंट हम देख रहे हैं, और साथ साथ में हमारा आगे का भी चीजें रेडी हो रही हैं, एंड आवर ऑल मिशंस आर ऑन ट्रैक, मे बी लिटिल बिट हियर एंड देयर। अब देखिए अकाउंट, गिव एन अकाउंट ऑफ द ग्रोथ ऑफ डेवलपमेंट ऑफ न्यूक्लियर साइंस, फिर से रिपीट क्वेश्चन हो गया, और फास्ट बीटर रिएक्टर का क्या फायदा है ये भी पूछना चाह रहा है, ये भी हम कर चुके हैं। व्हाट आर द रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन अप्लाइड बायोटेक्नोलॉजी, लो भैया डायरेक्ट क्वेश्चन है, अप्लाइड बायोटेक्नोलॉजी हर जगह आ चुकी है। आप हाइड्रोपोनिक से लेकर और आप जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेकर, और आप क्या क्या नहीं कर रहे हैं। पुअरर सेक्शन ऑफ सोसाइटी की बात कर रहे हैं, पुअरर सेक्शन, वही बात है, खाने से लेकर रेडीमेड फूड से लेकर, ड्रेन को क्लॉग करने से लेकर, उसकी सफाई करने से लेकर, अप्लाइड बायोटेक्नोलॉजी इज एवरीवेयर। कपड़ों में आ गई है अप्लाइड बायोटेक्नोलॉजी, आपके रिसाइकल्ड कपड़े आ रहे हैं, आपके कॉटन के कपड़े ऐसे आ रहे हैं आपके, एवरीथिंग इज देयर। सो अप्लाइड बायोटेक्नोलॉजी इज सच एन इवॉल्विंग फील्ड कि वो कभी भी क्वेश्चन आएगा ही आएगा, दैट इज हाउ इट इज। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नैनो टेक्नोलॉजी, हाउ इट इज हेल्पिंग इन हेल्थ सेक्टर, वेरी रिपीटेड क्वेश्चन, और ऊपर से फर्स्ट पार्ट इसका फैक्चुअल है, सेकंड पार्ट तो आपको पता ही होना चाहिए, हमने 50 बार इसकी बात भी की है, कैसे नैनो टेक्नोलॉजी पहुंच चुकी है आपकी कार्डियोवेस्कुलर से लेकर, आपकी नी रिप्लेसमेंट से लेकर, आपके हार्ट से लेकर, आपके ब्रेन से लेकर, सब जगह जा गई है। डोजेस भी एकदम मतलब हो गई है। हाउ कैन बायोटेक्नोलॉजी इंप्रूव द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ फार्मर, तो क्वेश्चन नंबर 8 जो हमने अभी देखा ऊपर, और क्वेश्चन नंबर 10 दोनों सेम है एक तरीके से, और एक 21 में पूछा, 21 में पूछा जा रहा है, उसके बाद फिर से वही 19 में आया था। वाई देयर इज सो मच एक्टिविटी इन द फील्ड ऑफ बायो, क्या करें मजबूरी है, फिर से 18 में वही पूछ रहा है। बायो फार्मा पूछ लिया बस इस बार। स्टेम सेल थेरेपी इज गेनिंग पॉपुलरिटी इन इंडिया टू ट्रीट ल्यूकेमिया, थैलेसीमिया, डैमेज कॉर्निया एंड सीवियर बर्न्स, वो डिस्कस ब्रीफली क्या है स्टेम सेल थेरेपी, और उसके एडवांटेजेस क्या है बाकी ट्रीटमेंट के ऊपर से। आई थिंक वेरी फेयर इनफ क्वेश्चन। अगेन इन 2016 टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी पे फिर से क्वेश्चन आया, साइलेंट फीचर ऑफ गवर्नमेंट्स इन मिशन ऑन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी आप पूछा जाएगा आपसे, एंड स्कोप ऑफ इट्स एप्लीकेशन इन द डेवलपमेंट, तो यानी 3 पार्ट हो गए क्वेश्चन, 3 पार्ट हो गए, यानी आपसे गवर्नमेंट के मिशन भी हमें हर जगह देखने पड़ेंगे, हमें पता होने चाहिए। अब फिर क्या करें, लेकिन अगर ऐसे ही क्वेश्चन पूछे, व्हाट एल्स कैन बी आस्क्ड, साइंटिफिक रिसर्च इन इंडियन यूनिवर्सिटीज डिक्लाइनिंग, करियर साइंस का अट्रैक्टिव नहीं है, इस पे क्रिटिकली कमेंट करना है। अब बोलो, बिल्कुल अलग डोमेन हो गया, यानी कोई कॉन्सेप्ट नहीं पता होना चाहिए, पैशनेटली आपको पता होना चाहिए। फिर 2013 में 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी भी आ चुकी है, एडवांटेज डिसएडवांटेज। फाइबर रेनफोर्स प्लास्टिक कंपोज मटेरियल, हाउ दे आर मैन्युफैक्चर्ड, डिस्क्राइब देयर एप्लीकेशंस इन एविएशन एंड ऑटोमोबाइल, अगेन अ वेरी स्पेसिफिक काइंड ऑफ क्वेश्चन। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में इंडिया, हाउ इंडिया गवर्नमेंट प्रोटेक्टिंग ट्रेडिशनल नॉलेज ऑफ मेडिसिन फ्रॉम पेटेंटिंग बाय फार्मास्यूटिकल, आम आदमी का क्वेश्चन कि तुलसी दूध में डाल के देते हो, कंपनियां उसी को पेटेंट कर रही है, हल्दी दूध में डालते हैं उसी को पेटेंट करना चाहती है।
Again, 2015 में Indian Traditional Knowledge Digital Library has a database contain formatted information of more than 2 million medicinal formulations, is providing a powerful weapon in countries fight against erroneous patents. Describe the pros and cons of making this database publicly available under open source licensing. Very true. We have discussed that also. In a globalized world, intellectual property rights assume significance and are a source of litigation. Broadly distinguish कीजिए कॉपीराइट क्या है, पेटेंट क्या है, ट्रेड सीक्रेट क्या है. ये हमें पता होने चाहिए. हमने इस पे बात भी की है. Bringing out the circumstances in 2005 which forced amendment to the section 3D in 18 law 1970, discuss how it is being utilized by Supreme Court in its judgment in rejecting Novartis patent application of Glivec. ये न्यूज में रहा था, इसीलिए क्वेश्चन आ गया. अब लेकिन क्वेश्चन बदले भी हैं. जैसे हमने बात की, कॉन्सेप्ट क्या है एआई का, एआई से आप क्लिनिकल डायग्नोसिस कैसे करोगे, क्या प्राइवेसी भी है, प्राइवेसी को थ्रेट भी है एज फार एज इंडिविजुअल की बात है एआई हेल्थ केयर में. फिर उसके बाद करंट फ्यूल शॉर्टेज में कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो हमारी हेल्प कर सकते हैं, क्या तरीके हैं जिससे ऐसा हो सकता है. और मेन टास्क ऑफ इंडिया थर्ड मिशन विच कुड नॉट बी अचीव्ड इन इट्स अर्लियर मिशन, कंट्रीज बताइए जिन्होंने ऐसा किया है, और सब सिस्टम्स बताइए. And explain the role of virtual launch control center at the Vikram Sarabhai Space Center. तो बात वही है, आसपास से हमने जितना कवर किया है, जो हम करते आए हैं उसी के आसपास की बात है. लॉन्च ऑन December 25, 2021 जेम्स वेब टेलीस्कोप बहुत ज्यादा न्यूज में रहा था. आई रिमेम्बर मानसी के साथ हमने हिंदू, यंग वर्ल्ड, इन सबसे हमने नोट्स भी बनाए थे इसके. व्हाट आर यूनिक फीचर्स टू मेक इट सुपीरियर, व्हाट आर द की गोल्स ऑफ दिस मिशन, व्हाट द बेसिक प्रिंसिपल बिहाइंड वैक्सीन डेवलपमेंट, फिर से ऊपर हमने क्वेश्चन देखा ही है. और जो है व्हाट इज द टेक्नोलॉजी बीइंग एम्प्लॉयड फॉर इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन, एक साल से न्यूज में आ रहा है. एडवांटेज क्या है, लिमिटेशन क्या है, अब तो हम डायरेक्ट बात करते हैं. चेंजेस क्या है, वही जो बात हमने पहले भी की. और क्या ट्रांजिशन पोटेंशियल हजार्ड लेके आएगा, नहीं लेके आएगा. डिस्कस द डिस्क्राइब द कॉन्टेक्स्ट एंड सेलिएंट फीचर्स ऑफ द डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023. वेरी ट्रू. एस्टेरॉइड क्या है, क्या उनसे रियल थ्रेट है, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं. आज एस्टेरॉइड है, कल को मीटेरॉइड होगा, फिर उसके बाद मिसाइल न्यूक्लियर पावर पे कुछ आ सकता है, न्यूक्लियर रेडिएशन पे कुछ हो सकता है. सोशल मीडिया एंड एन्क्रिप्टिंग मैसेजिंग सर्विसेज पोज अ सीरियस सिक्योरिटी चैलेंज. व्हाट मेजर्स हैव बीन अडॉप्टेड एट वेरियस लेवल्स टू एड्रेस सिक्योरिटी इंप्लीकेशंस ऑफ सोशल मीडिया. अब ये इंटरनल सिक्योरिटी में भी आ सकता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी आ सकता है. तो अगर हम सिलेबस पे जाते हैं तो हमने सिलेबस को देखा कि सिलेबस और बढ़ेगा ही, और घटने वाला नहीं है. कि कैसे, अगर हम कहते हैं कि फोन ऑब्सोलीट हो जाएंगे, अगर फोन ऑब्सोलीट हो जाएंगे तो भाई कैसे काम चलेगा. अभी तक यूपीएससी ने आपकी घड़ियों पे, स्मार्ट वॉच और इन सब पे नहीं पहुंची है वो डायरेक्टली. सेंसर, ये जो पूरी घड़ी का, घड़ी से लेकर और ट्रेसर से लेकर और चश्मे से लेकर वर्चुअल रियलिटी और यू नो ऑगमेंटेड रियलिटी वो भी ले आएगी. और उसके साथ साथ जो है टेलीविजन का भी समय खत्म होने जा रहा है. आपके प्लाज्मा से लेकर अब क्यूएड और पता नहीं उसके आगे क्या क्या आ गया है. इलेक्ट्रिक कार तो दौड़ ही रही है, तो उसके पीछे भी एक पूरा टेक्नोलॉजी है. और उसके बाद जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट चाहिए, तो उसके लिए आपको यानी कि रिसाइकलिंग, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की टेक्नोलॉजी भी आ सकती है. ऐसा कुछ बड़ी बात नहीं है. तो यानी एवरीडे लाइफ में हमारे पास स्कोप है. और आई थिंक फेयर इनफ क्वेश्चंस हैं जो हमें, हमारे जिस ट्रैक पे हम चले हैं उसी ट्रैक की तरफ वो इशारा करते हैं. तैयार रहना होगा. तो मानसी, आपका क्या कहना है. तो ये मेजर थीम्स तो एक जो करंट हैपनिंग्स है उसी के अराउंड सारा रिवॉल्व हुआ है. तो कितनी क्लैरिटी है उसके एक बेसिक कॉन्सेप्ट में, उसके फंक्शनिंग में, क्यों डेवलप किया, कैसे हेल्प बिल्कुल. किया. सो इसी का इम्पोर्टेंस है सर, इसी के जैसे अभी अराउंड. डिफेंस में बात हो रही है भाई, टैंक वैंक करके, टैंक कौन चलाएगा, क्यों चलाने हैं टैंक. हम्म. आप कंप्यूटर से जो है ड्रोन भेजो, अनमैन्ड एरियल जी. व्हीकल भेजो भाई. या हम्म. टैंक भी है ना, तो टैंक भी ऑटोनोमस होना चाहिए. वो होना चाहिए ऑटोमेटेड. हम्म. रॉबर्ट्स जो है गोलियां चलाएंगे. हाँ, अभी एयर टैक्सी. चाइना में अभी ह्यूमनॉइड्स की रेस हुई है. जी. तो हमने जिस डायरेक्शन में सोचा है, जैसे काम किया है, आई थिंक वही डायरेक्शन है ये. बस थोड़ा सा थोड़ा क्लैरिटी और समझदारी से इसको करने की आवश्यकता है. क्या जी. कहना है आपका. हाँ जी सर, यही है क्लैरिटी बेसिक की.
प्रिवेसी से रिलेटेड आ जाएगा, ह्यूमन लाइफ सेव हो रही हैं, भाई एथिकल आपके, हाँ, इम्पोर्टेंट है। थोड़ा बहुत आएगा ना, थोड़ा साइंस होगा, थोड़ा सा अब इंडिजिनस का भी क्वेश्चन आ ही सकता है। जैसे मैंने बोला, आज जो है आपका सत्येंद्रनाथ बोस आए हैं, हम्म। कल आपका सीवी रमन आ जाएंगे। रेस कैटरिंग से ही सब कुछ हो रहा है, उसके बिना तो हो ही नहीं सकता था कुछ भी। हाँ जी। फिर उसके बाद आपके और भी बड़े बड़े साइंटिस्ट रहे हैं, विक्रम साराभाई भी आ जाएगा। क्या बड़ी बात हम्म। है? हाँ एपीजे जी अब्दुल सर। कलाम साहब पे आ जाएगा, क्यों नहीं आ सकता? हम्म। और ये कौन सा ईयर स्पेसिफाई कर रहा है? आयुर्वेदा पे भी आ जाएगा ऐसे तो। ये थोड़ी ना हाँ। बोल रहा है पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया और चाणक्य से लेकर, और मत, चाणक्य तो खैर साइंटिस्ट नहीं थे, वो तो सोशल साइंटिस्ट हैं और इकोनॉमिक साइंटिस्ट हैं वो। लेकिन मेरा कहने का मतलब है, लीलावती से लेकर सब आ सकता है। हाँ जी सर। मैथमेटिशियंस। और नेशनल साइंस डे हम मनाते हैं। फिर उसके बाद बायोटेक की बात तो है, डिफेंस है, बायोटेक्नोलॉजी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एरिया। हाँ जी। तो आई थिंक इसी डायरेक्शन में हमें सोचना है, यही जो हमने किया है उसी को हम थोड़ा सा और आगे पुश कर सकते हैं। हाँ जी सर। दिव्या, आपका क्या कहना है? हाँ जी सर। सर, रिसेंट जो डेवलपमेंट्स है उनके अकॉर्डिंग जिस गवर्नमेंट के इंसेंटिव्स स्कीम्स और जो इनिशिएटिव्स है सर, वो भी देखने हैं सर कि उनके किस हम्म, डायरेक्शन में सर। बिल्कुल देखना है वो भी। सो आई थिंक विद दिस डायरेक्शन वी आर गोइंग टू मूव विद मोर एंड मोर क्लैरिटी। एंड हमारे पास डेटाबेस पूरा है, हमने रिवाइज भी किया है, हमारे पास सोर्सेज भी रेडी हैं। जस्ट वी नीड टू फिगर आउट लिटिल बिट that how we can be prepared in next couple of hours so as to put our best and be happy at the same time. So thank you very much for working, joining, and also understanding these complex but at the same time interesting topics, thereby bringing more clarity to the preparation and also to the success for the examination with Ansarkari.